Hello viewers, this is video number 41 of linear algebra and this is 17th video of basis and dimension. बेसिस एंड डायमेंशन की ही बात को आइए आगे बढ़ाते हैं. पहले एक छोटा सा थ्योरम करेंगे, फिर उससे एक एग्जाम्पल. Every subspace of a finite dimensional vector space finite dimensional vector space has a complement. Has a complement means has a complementary subspace. If V equals to W1 plus 1 W2, that is, if V equals to direct sum of its two subspaces W1 and W2, then W2 is called complement of W1 and vice versa. Proof. Let W be any subspace of a finite dimensional vector space VF. Then, as we know that W itself is finite dimensional, then as we know that W is also finite dimensional. And dimension W less than or equal to dimension V. ये थ्योरम था हम लोग पढ़े हुए. Sorry. Let S equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha m be a basis of W. So that dimension W is equal to m. चूंकि W V का सब स्पेस है, इसलिए W की सारी संपदा V की ही है. W के बेसिस के सारे वेक्टर्स V से ही आए हैं. तो हम कह सकते हैं कि S इज Li सबसेट ऑफ V. चाहो तो लिख देना. देन क्लियरली S is a Li subset of V. Now we apply extension theorem. Every Li subset of V can be extended to form a basis of V by extension theorem. Let the extended set B equals to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 कामा सो वन कामा अल्फा एम. अब इसे एक्सटेंड करना है, चाहे अल्फा टाइप वेक्टर को ये इसे इंडेक्स बढ़ा करके एक्सटेंड कर लो, चाहे दूसरे टाइप के वेक्टर देखो डाल देना बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो वन कामा बीटा एन. इतने वेक्टर और डाल दिए और मान लिया कि यही एक्सटेंडेड सेट वी का बेसिस है. बी अ बेसिस ऑफ वी. So that dimension V is equal to m plus n. माना W2
एक ऐसा सब स्पेस है जिसका बेसिस करली ब्रैकेट β1 β2 so on βn है. Let W2 be a subspace of V such that, इसे S डैश से डिनोट करते हैं. S डैश इक्वल टू करली ब्रैकेट β1 कामा β2 कामा so on कामा βn is a basis of W2. Then we shall prove that, अब हम सिद्ध करेंगे कि W2 is complement of W1. For this we shall prove that V equals to direct sum of W1 and W2. ये अगर ऐसा होता है ना तभी हम कहते हैं कि W1 W2 का कॉम्प्लीमेंट है, W2 W1 का कॉम्प्लीमेंट है. तो W1 हमारे पास पहले से ही है, W1 नहीं है, W है, तो चाहे तो इसको W1 शुरू से ही कर दें या शुरू से चेंज कर दो. लेट W1 या W डैश रहने तो जैसी इच्छा करे, फिलहाल यही कर लो. लेट W1 बी एनी सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF. देन एज वी नो दैट W1 is also finite dimensional and dimension W1 less than or equal to dimension V. Let S equal to curly bracket alpha 1 alpha 2 so on alpha m be a basis of W1 so that dimension W1 equals to m. Then clearly S is Li subset of V. Let the extended set beta B equals to this be a basis of V so that dimension V equal to m plus n. Let W2 be a subspace of V such that S dash equal to phala is a basis of W2. Then we shall prove that W2 is a complement of W1. तो यही है. देखो अब थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो, इससे भाव निकालो. एवरी सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ कॉम्प्लीमेंट. तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF का हमने एनी सब स्पेस लिया था W1 और दिखा दिया कि इसके लिए कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस एग्जिस्ट करेगा W2. और ये कब संभव होगा? जब V बराबर W1 प्लस 1 W2 होगा. तो अब V इक्वल टू W1 प्लस W2 कब होगा? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डायरेक्ट सम याद है? V इक्वल टू W1 प्लस W2 हो और W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स टू सिंगलेटन थीटा हो. तो इन्हीं दो कंडीशंस की तरफ आइए धीरे धीरे बढ़े. ऑब्वियसली W1 is subset of V, W2 is subset of V, implies that W1 plus W2 is subset of V. Number one. Let gamma be any element of V, be any element of V जो कि L ऑफ B के बराबर है, क्योंकि B V का बेसिस है, क्योंकि B V का बेसिस है, तो V बराबर L ऑफ B. V मस्ट बी स्पॉन्ड बाई V. देन गामा बिलोंग्स टू L ऑफ B एंड सो गामा इक्वल्स टू B के एलिमेंट्स का LC. सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to m, AI alpha I plus sigma j varies from 1 to n, bj beta j belongs to L of S plus L of S dash. Is it correct? ये समेशन L of S में होगा क्योंकि S के एलिमेंट्स का LC है. ये समेशन L of S डैश में होगा क्योंकि ये S डैश के एलिमेंट्स का LC है. S W1 का बेसिस है
इसलिए L ऑफ S बराबर होगा W1, S डैश W2 का बेसिस है, इसलिए L ऑफ S डैश बराबर होगा W2। implies that गामा बिलोंग्स टू, फिर से लिख देना, L ऑफ S प्लस L ऑफ S डैश इक्वल्स टू W1 प्लस W2। तो गामा आर्बिट्रेरी एलिमेंट था V का, वो इसमें चला गया, इसका मतलब V के सारे एलिमेंट इसमें चले जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। देयरफॉर V इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 V इक्वल्स टू W1 प्लस W2। ये काम हो गया। ये प्रूव करने के लिए दो बातें हमको सिद्ध करनी है, एक हो गया। अब दूसरा ये कि W1 इंटरसेक्शन W2 के पास केवल 0 वेक्टर ही होगा, इसके अलावा कोई और वेक्टर नहीं कॉमन होगा। तो चलो एक नॉन जीरो वेक्टर कॉमन मान लिया जाए। लेट Z be any element of W1 intersection W2। Then Z belongs to W1, comma Z belongs to W2, implies that Z belongs to W1 माने L ऑफ S, Z belongs to W2 माने L ऑफ S डैश, यानी कि Z LC होगा S के एलिमेंट्स का। Z इक्वल टू सिग्मा AI अल्फा I वेरीज फ्रॉम 1 to M। इसमें Z LC होगा S डैश के एलिमेंट्स का। Z इक्वल टू सिग्मा J वेरीज फ्रॉम 1 to N BJ बीटा J, ये S डैश दिख रहा है। Z की दो वैल्यूज हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, बराबर कर दो। implies that sigma I varies from 1 to N, 1 to M, AI alpha I equals to sigma J varies from 1 to N BJ beta J, implies that sigma I varies from 1 to M AI alpha I plus sigma J varies from 1 to N minus BJ into beta J equals to theta। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें सारे अल्फाज, सारे बीटास का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी बी के एलिमेंट्स का, बी के सारे एलिमेंट्स का ये एलसी है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बी के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। चूंकि बी बेसिस माना गया था वी का, बेसिस होने के नाते एल आई होगा, इसलिए इस सिस्टम में जितने स्केलर्स लगे सबके सब जीरो होने चाहिए। implies that AI equals to 0, 1 less than or equal to I less than or equal to M, and BJ equals to 0, 1 less than or equal to J less than or equal to N। इस प्रकार से जो आपने Z की वैल्यू यहां लिखी हुई है, हमको लगता है 2 नंबर तक हुआ, इसको 3 करना है। सो दिस इंप्लाइज दैट Z इक्वल टू थीटा, यहां लिख दिए बाई 3। ये सारे AI 0 कर दो तो Z बराबर थीटा हो गया, सारे BJ 0 कर दो तब भी Z बराबर थीटा, यानी Z इक्वल टू थीटा आ गया। W1 इंटरसेक्शन W2 में हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, वो थीटा पाया गया, यानी कि थीटा के अलावा कोई और एलिमेंट इसमें नहीं होगा। एंड सो W1 intersection W2 is equal to
सिंगलेटन थीटा। यहाँ पे एक नंबरिंग कर दे, यहाँ पे एक नंबरिंग R1 कर दे रहे, स्पेशल स्टिकर लगा दे रहा, और यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहे, स्पेशल स्टिकर लगा के R2। फाइनली फ्रॉम R1 एंड R2, फाइनली फ्रॉम R1 एंड R2, V इक्वल्स टू W1 प्लस W2 कामा W1 intersection W2 equals to singleton theta, and this implies that V equals to W1 plus 1 W2, यानी W2 is a complement of W1, यानी कि W1 का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर गया, यही हमको दिखाना था। अब इस पूरे प्रूफ में कुछ गौर करने लायक बातें हैं। आइए गौर किया जाए, फिर उस पर एक एग्जाम्पल किया जाए। इंपॉर्टेंट नोट लिख के हम गौर कर रहे हैं, एकदम लिखित। अलजेब्रा का काम लिखित होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट, let S equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n be a basis of a subspace W1 of finite dimensional vector space VF. Let the extended set B equals to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha m comma beta 1 comma beta 2 comma so on comma beta n be a basis of V, then S dash equal to curly bracket beta 1 comma beta 2 comma so on comma beta n will be a basis of W2 where V equals to W1 plus 1 W2, यानी where W2 is complement of W1। गौर क्या कर रहे हैं हम कि W1 के बेसिस को एक्सटेंड करके जब हम V का बेसिस बनाए हैं, तो एक्सटेंड करने के लिए जो जो वेक्टर्स हम ऐड किए हैं, इंक्लूड किए हैं, उन्हीं वेक्टर्स का जो सेट अलग से हम बना लें, वही कॉम्प्लीमेंट का बेसिस होगा। ये ऑब्जर्वेशन है। अब इसको एक एग्जाम्पल से और क्लियर किया जाएगा। एग्जाम्पल, W equals to curly bracket 4 tuple x y z t such that x minus y equals to 0 and y plus z plus t equals to 0. We can verify that this is subspace of R4R. वो हम नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है इसके कॉम्प्लीमेंट का बेसिस निकालना। इट इज अ सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस R4 और R। द स्टैंडर्ड बेसिस
the standard basis of R4 is curly bracket 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इसे हम सुविधा के लिए डिनोट करते रहे E1 E2 E3 E4। क्या कर रहे हैं हम W का बेसिस पहले प्राप्त करने जा रहे हैं। जब W का बेसिस हमको मिल जाएगा तो उसको एक्सटेंड करके हम B का बेसिस बनाएंगे और फिर जो ये इंक्लूडेड वेक्टर्स हैं इनका सेट बना करके कह देंगे वही W के कॉम्प्लीमेंट का बेसिस है। तो W का बेसिस देखो हम कैसे बनाएंगे। R4 के स्टैंडर्ड बेसिस हमको मालूम है। स्टैंडर्ड बेसिस इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये हमको मालूम है कोई भी बेसिस ले सकते हैं। इनमें से वो एलिमेंट्स W के बेसिस में जाएगा जो इन दो ट्रांसफॉर्मेशंस को ओबे करे। ऑब्वियसली पहला ट्रांसफॉर्मेशन है x इक्वल टू वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 0 माने y इक्वल टू एक्स, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट बराबर हो। तो इन चारों में ऐसे कौन है जिनमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकेंड कोऑर्डिनेट बराबर हो? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। ऑब्वियसली E3 एंड E4 undergo the transformation y equal to x. Now अब इन दोनों में से हम छाटेंगे y इक्वल टू एक्स कामा दूसरा दिया है y प्लस जेड प्लस टी इक्वल्स टू 0 implies that y इक्वल टू एक्स कामा y की जगह x इसमें रख दो, x प्लस जेड प्लस टी इक्वल्स टू 0 implies that y इक्वल्स टू एक्स कामा t इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस जेड। Therefore 4 tuple x y z t changes to 4 tuple x y की जगह x कर दो, z को z ही रहने दो और t की जगह माइनस एक्स माइनस जेड कर दो। नाउ E3 को उठाइए, E3 0 0 1 0 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेहतर समझने के लिए कलर का इस्तेमाल कर ले रहा हूं मैं, नाम लिख दे रहा हूं, नोमेनक्लेचर नोटेशन। ये x है, ये y है, ये z है, t है। अब चेंज करो आराम से। यहाँ x होगा, फिर x होगा, x माने 0 0 कामा 0 कामा z होगा, z माने 1 कामा यहाँ पे होगा माइनस एक्स माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस जेड माइनस 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 एंड E4 जो कि 0 0 0 1 है। फिर कलर का इस्तेमाल कर लें इस तरह से जैसे अब, तो गलती नहीं होगी। x y z t, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? क्या लिखना है? x फिर x माने 0 फिर 0 कामा z की जगह कौन है? 0 कामा फिर माइनस एक्स माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस जेड ये आ गया, फिर 0 आ गया। ठीक, फिर से चेक कर ले लो।
माइनस एक्स माइनस जेड, तो पहले वाले में माइनस एक्स माइनस जेड -1 हुआ, दूसरे वाले में E4 लिया गया। तो E4 में t की कोई भूमिका ही नहीं, t की जगह पे हमको लिखना है, t की जगह पे लिखना है माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स भी 0 है जेड भी 0 है तो 0 हो गया। तो ये थीटा 0 वेक्टर आ गया, ये जो वेक्टर आ गया ये 0 वेक्टर है। तो जिसको हम बेसिस बनाएंगे जिस सेट को, उसमें ये एलिमेंट नहीं लेंगे, उसमें हम ये एलिमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि बेसिस एलआई होता है, और एलआई सेट अगर है तो उसमें 0 वेक्टर की एंट्री नहीं होगी। Therefore S equal to करली ब्रैकेट, इसे हम अल्फा 1 कह दे रहे हैं, अल्फा 1, दैट इज S इक्वल टू करली ब्रैकेट 0 0 1 -1 इज अ बेसिस ऑफ W लिया था, W का बेसिस प्राप्त हो गया। अब W के बेसिस को एक्सटेंड करके हमें R4 का बेसिस बनाना है, W के बेसिस को एक्सटेंड करके R4 का बेसिस बनाना है। अब एक रिजल्ट आप लोग पढ़े हुए हैं, इफ S इज Li, अल्फा डजंट बिलोंग टू L ऑफ S, देन S यूनियन अल्फा इज Li सबसेट ऑफ V। यानी किसी Li सेट को एक्सटेंड करके दूसरा Li सेट बनाना। तो हम पहले से रिजल्ट की चर्चा कर दे रहे हैं। वी नो दैट इफ S is Li, if S is linearly independent, comma, alpha does not belong to L of S, then S union singleton alpha is Li। Li सेट को एक्सटेंड कर दिए, एक एलिमेंट बढ़ा दिए, और Li सेट तो स्टार्ट करें। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, नाउ L ऑफ S निकालेंगे। इसको S1 मान लो भैया, कितनी बार हम S की जगह फिर क्या लिखेंगे, यहाँ S1 कर लो, यहाँ S1 कर लो, और ये इसी रहेगा, फिर यहाँ पे S1। L ऑफ S1 बराबर क्या होगा, S1 के एलिमेंट्स का LC माने A अल्फा 1, A बिलोंग्स टू फील्ड R इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 4 टपल A से मल्टीप्लाई करें 0 0 A माइनस A सच दैट A बिलोंग्स टू R। हाँ, वो इवन 1 0 0 0 E2 0 1 0 0, तो क्या ये इवन इसमें होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि इवन में पहला दूसरा कोऑर्डिनेट बराबर नहीं है, और इसमें शर्त है कि पहला दूसरा बराबर हो और तीसरा चौथा में संबंध हो। Obviously, E1 doesn't belong to L of S1. Therefore,
S2 इक्वल्स टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा E1 इज Li। ये हमें एक्सटेंडेड Li सेट मिल गया। अब हम L ऑफ S2 निकालेंगे। L ऑफ S2 इक्वल टू करली ब्रैकेट A1 अल्फा 1 प्लस A2 E1 इक्वल्स टू करली ब्रैकेट A1 अल्फा 1 4 टपल 0 0 A1 माइनस A1 प्लस A2 E1 4 टपल A2 ट्रिपल 0 इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 4 टपल A2 कामा 0 कामा A1 कामा माइनस A1 such that A1 कामा A2 belong to field R। परखिए, देखिए क्या E2 इसमें होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि E2 में सेकंड कोऑर्डिनेट पे 1 है, इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट पे 0 है, तो E2 इसमें नहीं होगा। फिर वही लैंग्वेज लिखिए। ऑब्वियसली E2 doesn't belong to L of S2, therefore extended set S3 equals to S2 में एक एलिमेंट और बढ़ जाएगा, अल्फा 1 E1 E2 is Li। फिर एक्सटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम R4 के लिए बेसिस निकाल रहे हैं। R4 का डायमेंशन 4 होता है, उसके बेसिस, किसी भी बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या 4 होनी ही चाहिए। तो अभी तक 3 एलिमेंट वाला Li सेट हम निकाल पाए हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ा। नाउ L ऑफ S3 इक्वल्स टू करली ब्रैकेट A1 अल्फा 1 प्लस A2 E1 प्लस A3 E2 इक्वल्स टू करली ब्रैकेट A1 अल्फा 1 4 टपल 0 0 A1 माइनस A1 प्लस A2 E1, ये निकाले बेटे, 4 टपल A2 ट्रिपल 0 प्लस A3 E2 0 A3 0 0 इक्वल्स टू करली ब्रैकेट A2 कामा 0 0 A3 कामा A1 कामा माइनस A1 कामा A2 कामा A3 बिलोंग्स टू R। अब E1 आ चुका है, E2 आ चुका है, अब हमारे पास केवल E3 बचा है और E4 बचा है। 0 0 1 0। क्या E3 इसमें होगा? देखो E3 का फोर्थ कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। मान लो इसको हम 0 कर देंगे, अगर A1 0 कर देंगे तो यहां भी तो 0 हो जाएगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली हमको लगता है E4 भी इसमें नहीं होगा, तो अब E3 इंक्लूड होने जा रहा है। आप चाहे तो E4 इंक्लूड करना है। ऑब्वियसली E3 डजंट बिलोंग टू L ऑफ S3, देयरफॉर S4 इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा E1 कामा E2 कामा E3 इज Li, इज Li। हो गया, काम बन गया अपना। फोर एलिमेंट्स वाला, 4 वेक्टर्स वाला Li सबसेट मिल गया 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस R4 का। अब एक्सटेंशन थ्योरम की कॉरोलरी आप पढ़े थे। यदि कोई वेक्टर स्पेस
n डायमेंशन का है ओवर r, इसके n एलिमेंट्स का li सबसेट इसका बेसिस होगा, इसके n एलिमेंट्स का स्पानिंग सबसेट इसका बेसिस होगा। तो अब दो कंडीशन एक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप पढ़े हुए कॉरोलरी ऑफ एक्सटेंशन थ्योरम। बीइंग, ये इसी का हवाला दे रहा है। बीइंग अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ फोर डायमेंशनल वेक्टर स्पेस R4R, यहां थोड़ा और बढ़ाइए, बीइंग अ Li सबसेट ऑफ फोर वेक्टर्स ऑफ फोर डायमेंशनल वेक्टर स्पेस R4R, S4 इक्वल टू करली ब्रैकेट α1 कामा E1 कामा E2 कामा E3 is a basis of R4। W के बेसिस को एक्सटेंड करके R4 का बेसिस बनाया। एक्सटेंशन होते समय जो जो वेक्टर इसमें इंक्लूड हुए हैं उनका हम सेट बना लें, वही होगा बेसिस कॉम्प्लीमेंट का। 10 द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, यहां कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेट थ्योरी वाला कॉम्प्लीमेंट ना समझ लीजिएगा। 10 द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ W विल बी करली ब्रैकेट E1 कामा E2 कामा E3, हाँ, ऑफ द कॉम्प्लीमेंट W डैश ऑफ W, सो दैट डायमेंशन W इक्वल टू 1, क्योंकि W के बेसिस में केवल एक ही एलिमेंट था α1, डायमेंशन W डैश इक्वल टू 3, स्टार बना के फुटनोट लगा दे रहे हैं। हम जानते हैं कि इफ V इक्वल्स टू W1 प्लस 1 W2, देन डायमेंशन V इज इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2। तो ये बात यहां पूरी हो रही है ना। R4 का डायमेंशन बराबर W का डायमेंशन प्लस W डैश का डायमेंशन। ये आज का वीडियो पूरा हुआ। वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।